Welcome viewers. This is Anupma Singh, Teaching Associate in Rama University. So I welcome you in today's lecture, that is Hindu joint family. So what is joint family according to you? Right now we all think that joint family is in which we all stays together, lives together, okay? But according to Hindu joint family, the two or more generations which are living together or not living together, they are also called joint family. Like if there is a common ancestor, okay, and his son, his daughter, his another son, they all are joint family, whether they are living together or not, okay. And if common ancestor dies, then also they are joint family. Now what is Hindu joint family? When Hindu community plus their generations, okay, when Hindu community and generations are living together or are connecting with each other, that is Hindu joint family. Now there is a family tree which I have drawn here. Hindu joint family in which first is common ancestor, then first generation, son and his wife, daughter, another son and his wife. Son and his wife is also a joint family member. Daughter is also a joint family member until she is married. जब उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद वो दूसरी फैमिली की जॉइंट फैमिली मेंबर हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद सन के जो जनरेशन से आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन विच इज सेकेंड जनरेशन, उनकी वाइफ्स भी जॉइंट फैमिली की मेंबर होंगी, ठीक है. इनके जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो भी जॉइंट फैमिली की मेंबर होगी, ठीक है. अगर अब यहाँ पे डॉटर की बात करें, जिसमें हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये तब तक जॉइंट फैमिली की मेंबर रहेगी इस एंसेस्टर की जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती है. जिस दिन इसकी शादी हो गई ये दूसरी फैमिली की जॉइंट फैमिली मेंबर बन जाएगी. अब इसमें एक और चीज़ है, दैट इज़ इफ़ शी कम्स बैक ओके इन हर मैटरनल हाउस after divorce or permanently she comes back, then again she will be joint family member of this generation, but her children will not be the joint family member of this generation because वो उसके बच्चे उसके फादर के जनरेशन के जॉइंट फैमिली मेंबर होंगे, ठीक है. हिंदू जॉइंट फैमिली गवर्न की जाती है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से. तो हिंदू जॉइंट फैमिली में हमारे कौन कौन आ सकता है? कॉमन एंसेस्टर्स, डॉटर, सन, ग्रेट ग्रैंडसन, इलेजिटिमेट सन एंड adopted son. These are the members which conclude and become a Hindu joint family. Now, incidents of Hindu joint family. It says that if common ancestor, who is Karta also, he brings joint family together, okay. It is necessary to bring joint family in existence. Karta is the person who brings a family in existence. Without Karta this is impossible. Then second is, it is a creature of law, cannot be created by members. What does it mean? It says it is a creature of law, okay. It does not say when 4 or 5 members comes together and makes an agreement and says we are joint family. It is impossible. It is already differentiated by law who is joint family. You cannot make your own joint family by agreement or by any contract, okay. Now third is, Karta represents the family. What it says if you want to sue any other person or you want to sue any family or individual persons want to sue each other, they cannot do that. Only Karta have this ability to do that because Karta only represents the family. Karta represents his own whole joint family. Next is, it is not juristic personality. Members collectively own property. It means ये खुद में juristic personality नहीं है, ये कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती है, ठीक है. एक जॉइंट फैमिली का स्टेटस है सिर्फ कि हाँ हम जॉइंट फैमिली हैं, पर जॉइंट फैमिली स्टेटस क्या वो खुद अपने पास प्रॉपर्टी रख सकती है? नहीं, उसके मेंबर्स रखेंगे.
उसके सारे मेंबर्स जो होंगे वो कलेक्टिवली एक प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, और वही प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होती है, वही जाके डिवाइड होती है। ओके, नाउ स्टेटस कैन कम टू एन एंड बाय कन्वर्जन। ये बोल रहे हैं कि जॉइंट फैमिली का जो स्टेटस है वो कैसे ख़त्म हो सकता है। आप लोग जॉइंट फैमिली हो जब तक, उसका स्टेटस कैसे ख़त्म होगा, जब या तो हम कन्वर्जन कर लें किसी और रिलीजन में, या तो हम मैरिज टू अ नॉन हिंदू, हिंदू जॉइंट फैमिली है अगर हम नॉन हिंदू में शादी करेंगे तभी उसका स्टेटस ख़त्म होगा ना। अगर हम नॉन हिंदू में शादी करेंगे तब वो स्टेटस ख़त्म होगा, ठीक है। तो मैरिज टू नॉन हिंदू। नेक्स्ट इज एडॉप्शन, एडॉप्शन में फिर उसके बाद मैरिज ऑफ डॉटर। ये अभी पहले ही बताया मैंने कि जब डॉटर की किसी फैमिली से शादी हो जाती है दूसरे फैमिली में, तो उसका उस फैमिली से जॉइंट स्टेटस हट जाता है और वो दूसरे फैमिली की जॉइंट फैमिली मेंबर बन जाती है। ओके, देन अ हिंदू जॉइंट फैमिली में कंटिन्यू ऑन पार्टीशन ऑफ डिफरेंट जॉइंट फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस। जॉइंट फैमिली जो है हमारी हिंदू फैमिली, वो कब तक कंटिन्यू रहेगी, वो काफ़ी आगे तक कंटिन्यू रह सकती है अनटिल और अनलेस वहाँ पे पार्टीशन ना हुआ हो। ओके, व्हेन पार्टीशन टेक्स प्लेस विद द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, देन द एग्जिस्टेंस came to an end. Okay, now we were talking about compositions by which a family, joint family is made. So I told you that there is son, daughter and illegitimate son, adoption. Okay, so tell me one thing, that widows of our joint family are member of joint family or not? Now presumption of jointness, what does it mean? presumption करना कि एक joint family है, कैसे? यहाँ पे लिखा है जनरली एवरी हिंदू फैमिली इज प्रिज्यूम टू बी अ जॉइंट फैमिली। पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया जाता है दैट दे आर जॉइंट फैमिली। ओके, यहाँ लिखा है जनरली एवरी हिंदू फैमिली अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। हम प्रिज्यूम करते हैं पहले से ही कि वो जॉइंट फैमिली है, बट अगर किसी ने हम पे केस किया कि आप जॉइंट फैमिली हो या नहीं, तो ही हैज़ टू प्रूव वेदर वी आर जॉइंट फैमिली और नॉट। हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी, ठीक है। जॉइंट फैमिली कैसे होगी, हम कैसे प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो जॉइंट फैमिली है? फूड, वर्शिप और ई स्टेट सेम होना चाहिए, ठीक है। हम एक ही जगह खाना खाएं, एक ही जगह किचन हो हमारा, एक ही जगह वर्शिप कर रहे हो, एक ही प्रॉपर्टी हो, एंसेस्टर प्रॉपर्टी। ओके, तो वो जॉइंट फैमिली हो जाता है, हम उस तरीके से प्रिज्यूम करते हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपका किचन अगर एक ही जगह है तो ही आप जॉइंट फैमिली हो गए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पे आपका किचन हो, वो अलग भी हो सकता है, आप वर्शिप भी अलग कर सकते हो, अलग अलग घरों में भी रह सकते हो, पर स्टिल यू आर जॉइंट फैमिली। कैसे? क्योंकि हमारा कॉमन एंसेस्टर एक है, उससे हमारी जो भी जनरेशन्स आएंगी वो जॉइंट फैमिली हैं तब तक जब तक डिवीजन ना हो जाए और या कन्वर्जन ना हो जाए, मैरिज ना हो जाए। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूएशन ऑफ जॉइंट फैमिली एट द इंस्टेंस ऑफ ओनली डॉटर। जॉइंट फैमिली का कंटिन्यूएशन तब कैसे चलेगा जब सिर्फ डॉटर हो उनकी फैमिली में, ठीक है, सन नहीं है, आगे कैसे बढ़ेगा जॉइंट फैमिली का स्टेटस? तो वो कैसे बढ़ेगा? प्रेजेंस ऑफ मेल इज़ नॉट नेसेसरी। जब डॉटर हमारी फैमिली में सिर्फ रह गई है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें मेल की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, हम तब भी जॉइंट फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? बिफोर 1956 हमारे डॉटर्स के पास ये राइट नहीं था कि वो जॉइंट फैमिली का स्टेटस आगे कंटिन्यू कर सकें, बट आफ्टर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 केम, आफ्टर दैट डॉटर हैव द राइट्स to continue a joint family of her father. Here it says before 1956 a daughter did not have the capability to add a male member. Daughter के पास कोई capability नहीं थी before 1956, but after 1956 when this act came, she has the capability to add a male member who is adopted son, because she is unmarried, she can adopt a son और वो अपने फादर की फैमिली को, जॉइंट फैमिली को आगे कंटिन्यू कर सकती है। तो इस तरीके से हमारी डॉटर्स एक अगर सिंगल रह गई है किसी भी मेल मेंबर के कॉमन एंसेस्टर की फैमिली में, और तो वो कंटिन्यू कैसे करेगी ये बताया गया है यहाँ पे। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी।
and we will continue again in next session. Thank you.